Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Chapter number 2, Nutrition in Animals. New words. Assimilation. 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 A process of becoming a part. Milana. Number 2, Egestion. G-E-S, Tion. Egestion. Process of egesting और एवॉइडिंग. तज पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना, जिसको हम मल त्याग भी बोल सकते हैं. नंबर 3, टेंटिकल्स. TEN टेन, TA CLE curl. Tentacles. A flexible, mobile, elongated organ present in some animals. Shikanja. Mastication. MAS TION. Mastication. Process by which food is crushed and ground by teeth. Chabana. Peristalsis. PER per IELATL stl SISS. Contraction and relaxation of muscles of the esophagus alternately in wave-like manner. क्रमाकुंजन. पेशियों एक स्वयंभू लहरीली गति. COD curd. Partially digested food that is brought back to the mouth for chewing a second time. Jugali. Villi. VIVLILI. Villi. Finger-like projection present on the inner wall of the small intestine. रोवे बोलते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इंटेस्टाइन के इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं. Pseudopodia. PSEU DODO POPODIA. Pseudopodia. A temporary arm-like projection which helps in feeding and locomotion. अस्थायी आउटग्रोथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है जो उन्हें भोजन और स्थान चेंज करने में हेल्प करती है. होलोजोइक न्यूट्रिशन. HOHO LOLO ZOZO ICIC. Holozoic. The mode of nutrition in which food is taken into the body and then broken down into simpler substances. पूर्णभोजी पोषण. इस प्रोसेस में 5 तरह की प्रक्रिया पाई जाती है, जैसे इजिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन. एग्जाम्पल ह्यूमंस में डॉग और कैट, इन सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है. लेट अस स्टार्ट this chapter with an activity. Based on the feeding habits, animals can be classified into herbivores, carnivores, and omnivores. Look at the pictures given below and write H for herbivore, C for carnivore, or O for omnivore. First is deer. Deer is herbivore. Second is bear. It is carnivore. Third is fox. Fox is
omnivore. Fourth is zebra. It is herbivore. Heterotrophic mode of nutrition. The mode of nutrition in which animals depend on other animals for food. Animals, including human beings, follow heterotrophic mode of nutrition. Animals generally take in solid or liquid food that contains complex nutrients. These nutrients cannot be used directly by animals. They need to be broken down into simpler substances that can be easily absorbed by the body. मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. एनिमल्स जनरली सॉलिड और लिक्विड फूड लेते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनकी ज़रूरत होती है तोड़ के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि वो इजीली बॉडी द्वारा ऑब्जर्व किए जा सकें. हेटरोट्रॉप्स आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 होलोजोइक, नंबर 2 सेपरोट्रॉप्स, नंबर 3 पैरासाइट. हेटरोट्रॉप्स 3 टाइप्स के होते हैं: होलोजोइक, सेपरोट्रॉप्स एंड पैरासाइट्स. What is holozoic nutrition? Holo means whole, zoics means animal. The process of holozoic nutrition involves 5 steps. Number 1 is ingestion. The process by which food is taken into the body of the animal is called ingestion. Different animals take in or ingest food differently. Number 2, digestion. The process by which complex components of food are broken down into simpler substance that can be easily absorbed by the body is called digestion. Absorption. The process by which soluble substances obtained by digestion of food are absorbed into the blood of transportation to the cells of the body is called absorption. Assimilation. The process by which absorbed simple substances are utilized by the body to produce energy and make complex substances required by the body is called assimilation. Number 5 is egestion. The process of removal of undigested food or waste matter from the body is called egestion. होलोजोइक न्यूट्रिशन में इस प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट है इंजेशन. स्टार्टिंग प्रोसेस होती है खाना खाना. फूड जो है वो माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लिया जाता है, उसको इंजेशन बोलते हैं. इन मीन्स टेकिंग इन द फूड. सब एनिमल्स का अलग अलग इंजेशन प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज डाइजेशन. इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जो फूड के हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में ताकि वो इजीली बॉडी एब्जॉर्ब कर सके उनको. थर्ड इज एब्सॉर्प्शन. इस प्रोसेस में डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है, ब्लड सेल्स के साथ में मिक्स होके ट्रांसपोर्ट होता है. फोर्थ इज एसिमिलेशन. इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब सिंपल सब्सटेंसेस जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में और दूसरे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रिपेयर करने में. इजेशन. ये प्रोसेस है रिमूवल अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मैटर जो भी बॉडी का होता है जो पॉइजनस है, टॉक्सिक है, उसको बॉडी से रिमूव होता है. इंजेक्शन ऑफ फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स.
The ways in which food is ingested in the body varies in different organisms. Some organisms use outgrowths on their bodies to ingest food, while others have special organs for it. Ingestion means फूड लेने का तरीका सब ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के आउटग्रोथ्स होते हैं जो फूड को इंजेस्ट या फूड को लेते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स को स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो फूड को इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं. Hydra uses finger-like projections called tentacles for ingesting food. हाइड्रा को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको टेंटिकल्स कहा जाता है. इनसे प्रे को पकड़ लेता है और टेंटिकल्स में जो पॉइजन होता है वो प्रे के अंदर डाल के उसको पैरालिटिक कर देता है या किल करके फिर वो प्रे को माउथ में टेंटिकल्स से पकड़ के माउथ में रखता है, इंजेस्ट करता है फूड को. Ants have special paired jaws as mouth parts to bite, chew, tear, pierce, grind and hold food. Ants को स्पेशल पेयर यानी एक जोड़ी जॉज होते हैं एज अ माउथ पार्ट्स जो बाइट, च्यू यानी चबाना, काटने और फाड़ने के और ग्राइंड करने या ग्राइंड और होल्ड करने के काम में आता है. A butterfly uses a long tubular mouth part called a proboscis to suck nectar from flowers. बटरफ्लाई को एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है माउथ पार्ट का जिसको प्रोबोसिस कहा जाता है. ये नेक्टर सक करने का काम करता है फ्लावर्स से. हाउस फ्लाइज हैव माउथ पार्ट्स विच एक्ट लाइक अ स्पॉन्ज. हाउस फ्लाई के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं. मॉस्किटोज हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स टू पियर्स स्किन एंड सक ब्लड. मॉस्किटो को स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं जो स्किन को पियर्स और ब्लड को सक करने में हेल्प करते हैं. फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स. फ्रॉग्स और टोड्स को लॉन्ग और स्टिकी टंग होती है इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव बीक्स विथ विच दे ईट फूड. For example, eagles and hawks that hunt and kill prey have curved beak with a hook for tearing flesh. Birds को टीथ नहीं होते हैं, उनके टीथ का शेप उसके ऊपर डिपेंड करता है जैसा वो फूड खाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ईगल्स और हॉक की जो बीक होती है कर्व्ड होती है, हुक लाइक होती है फ्लैश को टीयर करने के लिए. Hummingbird have long and slender beak which help them in sucking nectar from the flowers. Hummingbird को लॉन्ग और स्लेंडर बीक होती है जिससे वो नेक्टर सक करते हैं फ्लावर्स में से. Snakes such as pythons swallow their food whole. स्नेक्स जैसे पाइथन पूरा अपना होल फूड को ही सॉलो कर लेते हैं, पूरा का पूरा ही सॉलो करते हैं. Some aquatic animals filter the tiny food particles floating in the water and feed on them. कुछ एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स पानी में रहने वाले एनिमल्स फूड पार्टिकल्स को जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल blue whale and shark. Nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular organism that is found in fresh water. It feeds on microscopic organisms present in water. An amoeba does not have a well-developed body. It has a cell membrane and many small vacuoles in its cytoplasm. An amoeba constantly changes its shape and position. अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स वो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है. ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स
जैसे डायटम्स, एल्गी, प्रोटोजुआ खाता है। इसको वेल डेवलप्ड बॉडी नहीं होती है, इसको एक सेल मेम्ब्रेन होती है और स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये कंटिन्यूसली अपना शेप चेंज करते रहते हैं और पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अमीबा मूव्स एंड कैप्चर्स फूड बाय pushing out many finger-like projections from the outer part of its body. These are called pseudopodia, pseudo meaning false and podia meaning feet. Pseudopodia secretes a sticky and toxic fluid and kills the prey. Finger-like projections बॉडी से निकलते हैं जिसको हम pseudopodia बोलते हैं। सूडोपोडिया का मतलब फॉल्स फीट, और बाद में जैसा इनका शेप होता है वैसा शेप हो जाता है बॉडी का। ये सूडोपोडिया से मूव भी करते हैं और फूड भी कैप्चर करते हैं। सूडोपोडिया स्टिकी या टॉक्सिक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिससे वो प्रे को किल करते हैं। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा आर ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. All the processes of nutrition are performed by a single cell of amoeba. न्यूट्रिशन जो अमीबा में होता है 5 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्सॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। ये सारा प्रोसेस एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। When an amoeba senses food, it starts extending its pseudopodia around the food particle and engulfs it. The engulfed food is taken into the cell in a small cavity called a food vacuole. Digested juices are released into the food vacuole. These digested juices break down the complex food particles into simpler substances. The simpler substances formed are absorbed by the cell and are used for its growth, maintenance and multiplication. The undigested food is expelled out of the cell by the vacuole. जैसे ही अमीबा को पता चलता है कि मेरे आसपास प्रे है, फूड है, वो अपने सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट को एक्सटेंड करने लगता है फूड पार्टिकल के आसपास, उसको कवर कर लेता है, सूडोपोडिया के थ्रू उसको कैप्चर कर लेता है और उसको फूड कैविटी, फूड वैक्यूल में डाल देता है जो एक स्मॉल कैविटी होती है। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टेड जूसेस रिलीज़ होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये सिंपलर सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं सेल के थ्रू और ये ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में यूज़ में आता है। जब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है सेल के वैक्यूल के थ्रू।